Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. In this video we will talk about different slips which we use for different purposes, and these are available in banks. So by using those slips that we have to do different activities so that we can avail different services also. Now we all know that what is bank. So अब पहले ये समझिए कि बैंक होता क्या आपका. So bank is a financial institution which deposit money and lend money. Also means that it gives loan also. So these are the two main activities which it does. तो बैंक में आपका एक तो मनी को लैंड करना मीन्स दैट इट गिव्स लोन ऑल्सो एंड इट डिपॉजिट द मनी ऑफ द पीपल, है ना, विच इज़ यूज टू गिव मनी टू द अदर पर्सन मीन्स दैट दोज हु आर borrowing. Now come to those things that what are the different slips which we use. So let's come to this now. So you can just check here. So this is deposit slip. So when we go to the bank, so we ask for this slip, है ना. So deposit means अगर हमें if we have some certain amount, if we are depositing money, so we will have a cash. So what we do, so we deposit that cash in our account also sometimes and sometimes in the others account, है ना, who needs money. So आप देखते हैं जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं आपका, and if we are purchasing something from them, so the person is not present, so what we do sometimes that we give money, ठीक है, to that person by depositing it in his account. तो उसके लिए हमें क्या होता है आपका, that we have to go to that particular bank. So you can just see here, so that this is the deposit slip of the Yes Bank, which is a private bank. So you can check here that what are the different things which you have to fill. So जो मेन चीज़ें आपकी होती हैं आपका डिपॉजिट स्लिप के अंदर, so what are these. So these are, first you can check here, so that you have to see that date is also here, and so you have to mention the date, so that date will be in both sections, so that you can check here, so that date will be here also and it will be in this side, means that both sides have different things and they are of same manner. सो आप यहाँ देखें दैट डेट यहाँ भी आपकी रहती है, डेट आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, मीन्स दैट बिकॉज दैट वन स्लिप इज़ गिवन टू द पर्सन हु इज़ डिपॉजिटिंग द मनी. जो डिपॉजिटर होता है उसको एक स्लिप दी जाती है एंड वन स्लिप इज़ टेकन बाय द बैंक, सो दैट डिपॉजिटर विल हैव अ प्रूफ के दैट आई हैव डिपॉजिटेड मनी. तो उस डिपॉजिटर के पास क्या होगा, एक प्रूफ रहेगा आपका, दैट्स वाई दैट ही गेट्स दिस लेफ्ट पार्ट. तो वो इस स्लिप को आपका यहाँ से ब्रेक होती है आपका. सो दिस इज़, ठीक है, broken from here, so this is just torn here and you can check here, so that you have to mention the account number also. So it is available in this case also, इसमें भी आपका यहाँ दिख रहे हैं आप. तो we have to write the account number of that person, ठीक है, in whose account we are depositing the money. ठीक है, अगर हम अपने अकाउंट में आपका डिपॉजिट कर रहे हैं, सो वी हैव टू राइट द अकाउंट नंबर इन दीज डिफरेंट ब्लॉक्स. सो आप डिफरेंट डिजिट्स होती हैं, सो वी हैव टू राइट ओनली वन डिजिट इन वन ब्लॉक. एक डेट में सिर्फ एक ही आपको क्या करना होगा, डेट रखनी हुई एक ब्लॉक के अंदर. एंड देयर आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट राइट दिस थिंग. इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग बाय चेक, सो राइट द चेक नंबर हियर, ठीक है, चेक नंबर विल बी हियर ऑल्सो एंड चेक डिटेल्स. ओके, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट चेक. एंड इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग कैश, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, सो यू हैव टू जस्ट राइट द कैश, दैट हाउ मच कैश यू आर डिपॉजिटिंग इन दिस अकाउंट, जो कि अकाउंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं आपका. सो यू हैव टू राइट दिस थिंग. सो यू कैन जस्ट चेक हियर दैट व्हाट आर द डिटेल्स विच यू हैव टू प्रोवाइड रिलेटेड टू चेक. अगर आप चेक, ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं इसके साथ आपका, सो यू हैव टू राइट द बैंक नेम एंड द ब्रांच एंड सिटी ऑल्सो. सो दैट आपके जो चेक पे जो भी ब्रांच नेम है आपका एंड बैंक नेम है, यू हैव टू जस्ट राइट दैट ऑल्सो एंड द चेक number will be here and check and who has issued this check, so you have to just write here. And after that if you are depositing cash, अगर आप कैश को डिपॉजिट करते हैं, so you have to just write, ठीक है, these things in this case, कि आप जो डिफरेंट डोमिनेशन मीन्स कि आप 100 रुपीज़ का नोट है आपका, 1000 रुपीज़ का नोट है, 500 का है, 50 रुपीज़ का है, सो यू हैव टू जस्ट राइट दिस थिंग. इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग लाइक 100 इंटू 5, सो अब मान ली 1000 के रुपीज़ अब तो चल नहीं रहे आपका, लेकिन दैट अर्लियर इट वॉज यूज्ड. सो नाउ जस्ट थिंक अबाउट 500. सो इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग 20 नोट्स ऑफ 500, तो यहाँ पे आपको इंटू 20 लगाना होगा. देन यू हैव टू जस्ट डू हियर दैट विल बी 10,000 here.
and in this way you have to just check. Now that you have to write the amount in words here. तो आपको जो amount होगा, if you are depositing 10,000 rupees, तो आपको 10,000 only लिखना होगा. So we use only so that nobody can do anything in this, है ना, कोई इसके अंदर कोई चीज़ ना कर सके, ऐड ना कर सके, that he cannot increase the amount also. That's why we have to write only after this amount, जो भी amount हम fill करते हैं आपका. And you can just check here. So account holder's name will be here, and who is depositing the money, that person signs will be here. Okay, उस person के sign आपके यहाँ भी होंगे आपका. So you can see here that both things are available in this case. अब दोनों चीज़ें इस केस में available हैं आपका. So that cash is also here, rupees amount here, and depositor is also here, and the person who is just taking that money, that person is called teller. So teller कौन था आपका? So the person who is just sitting there, who is just taking the money or who is depositing money of us. तो जो भी मनी डिपॉजिट करता है, so that person will just sign here and he will just use a, ठीक है, stamp here. So this is the thing which we have to use while we deposit money. Now come to the withdrawal form. So withdrawal form क्या होता है आपका? So that when we need money, so sometimes that we take money from our account. तो हम जो withdrawal form है आपका, we can use only for our account. ये सिर्फ हम अपने account के लिए यूज़ कर सकते हैं आपका. But deposit, ठीक है, slip can be used फॉर एनी बैंक. अगर हम किसी पर्टिकुलर बैंक में आपका हम डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा आपका, सो इट कैन गो इन दैट पर्टिकुलर बैंक और पर्टिकुलर अकाउंट. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द विड्रॉल फॉर्म, अगर विड्रॉल फॉर्म की हम बात करते हैं, सो विड्रॉल फॉर्म कैन बी यूज ओनली व्हेन यू हैव एन अकाउंट इन एनी बैंक. सो उस पर्टिकुलर बैंक, जैसे स्टेट बैंक का आपका ये है, सो इफ़ यू हैव अकाउंट इन स्टेट बैंक, सो यू कैन गो देयर एंड यू हैव टू जस्ट टेक दिस स्लिप and then you have to write all the details. So you can take it from your account only. So this is only applicable for one account. So you have to just write the date here. आपको यहाँ पे date लिखनी होगी. Then you have to mention the account number in this case and that how much money you are taking. So उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा. Okay, so we all know that we have to just write, ठीक है, these things in that in letters also मीन्स इन द वर्ड्स. तो आपको वर्ड्स में लिखना होगा और उसके बाद आपको किस में लिखना होगा, दैट यू हैव टू राइट इन द फिगर ऑल्सो. तो आपको फिर फिगर में भी आपको लिखना होता है. सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द फिगर हियर एंड द सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द पर्सन हु हैज़ अकाउंट एंड सो ही इज़ विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम दैट अकाउंट. वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा है. सो दैट पर्सन विल साइन हियर. तो वो इंसान यहाँ पे साइन करता है एंड ही हैज़ टू मेंशन द मोबाइल नंबर इफ़ इट इज़ नीडेड. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस, है ना. एंड देयर आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द अकाउंट होल्डर्स नेम, है ना, जो अकाउंट होल्डर का जो पर्टिकुलर नाम है आपका उस अकाउंट में, ठीक है. सो यू हैव टू राइट दैट थिंग ऑल्सो एंड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस विड्रॉल यू हैव टू डू 2 साइंस. तो आपको 2 साइन करने होते हैं. देन दैट पर्सन हु इज़ जस्ट सिटिंग देयर टेलर, सो ही चेक्स द साइंस, देन ही गिव्स मनी टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट. So firstly you have to understand check. So this is the another thing which we use in bank. So check is an instrument in writing addressed to a banker signed by a person who has deposited money with the banker, requiring him to pay on demand a certain sum of money to him or to the order of certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट. इट मीन्स सो इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द टूल, है ना. एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल कह सकते हैं आपका. सो इट इज़ इन रिटन फॉर्म, है ना. सो इट इज़ अ पेपर विच इज़ इन रिटन फॉर्म एंड वॉट इट टेल्स टू द बैंक. सो इट इज़ गिवन टू द बैंक. ठीक है, बैंक को दिया जाता है आपका. सो व्हेन यू गो टू द बैंक, सो यू जस्ट गिव इट टू द बैंक एंड इट इज़ साइंड बाय अ पर्सन, है ना. और ये जो चेक होता है आपका, सो इट इज़ साइंड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन हुज, ठीक है, चेक इज इट. तो जिसका भी चेक होता है आपका, सो दैट पर्सन हैज़ टू साइन. सो ठीक है, बिलो द चेक या बॉटम पे आप देखेंगे आपका. एंड देन व्हाट ही टेल्स दैट ही इज़ टेलिंग टू द बैंक कि दैट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट. तो आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है. पे ऑन डिमांड, समटाइम्स वी से डिमांड डिपॉजिट ऑल्सो, टू हिम और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. तो जिस पर्सन के लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं आपका, सो दैट पर्सन कैन टेक दैट मनी. सो दैट पर्सन कैन बी द बियरर ऑफ दैट. नाउ जस्ट लुक दिस, आप यहाँ देख सकते हैं कि दैट दिस इज़ द चेक. सो इफ़ एनी पर्सन हैज़ अकाउंट इन एनी पर्टिकुलर बैंक, तो किसी भी अकाउंट में किसी भी आपके बैंक में कोई भी अकाउंट अगर होता है आपका, सो दैट इफ़ यू आर, ठीक है, गिविंग मनी टू समबडी एज, लाइक यू कैन जस्ट सी हियर दैट पंकज कुमार सिंह. सो ये जो आपका चेक बुक है आपका, सो दैट दिस इज़, ठीक है, इशूड फॉर पंकज कुमार सिंह. सो पंकज कुमार सिंह, ठीक है, इज़ द पर्सन, ठीक है, हु इज़ गिविंग ऑर्डर और हु इज़ जस्ट
ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक के आप जो हैं दैट यू हैव टू जस्ट गिव अ सर्टेन अमाउंट टू दैट पर्सन हुज नेम विल बी हियर। जो पे होता है आपका उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा। इफ़ यू आर राइटिंग योर नेम तो यहाँ पे आपका नाम लिख जाएगा। तो पंकज कुमार सिंह जिसको भी अमाउंट पे करते हैं, तो मान ली 10,000 रुपीज़ अगर अनुज कुमार को दे रहे हैं, तो अनुज कुमार नेम विल कम इन दिस पे। ओके, अनुज कुमार। एंड वट एवर द अमाउंट ही इज़ गिविंग, तो जो भी अमाउंट वो अपने अकाउंट से देंगे आपका, सो ही हैज़ टू राइट हियर इन वर्ड्स। तो इसको वर्ड्स में लिखना होगा। एंड उसके वर्ड्स में लिखने के बाद अगर 10,000 है सो 10,000 ओनली, देन यू हैव टू राइट हियर इन फिगर। तो आपको यहाँ फिगर में लिखना होगा सो 10,000। तो आप बाहर ना निकले इससे आपका। सो दिस इज़ द अकाउंट नंबर ऑफ द पंकज कुमार सिंह। तो यहाँ आप देखते हैं ये जो आपका दिख रहा है 6 डिजिट का, सो दिस इज़ द चेक नंबर। सो अगर somebody इज गिविंग अस अ चेक, अगर कोई भी हमें चेक देता है आपका, सो इफ़ वी आर डिपॉजिटिंग दिस चेक इन आवर अकाउंट, सो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस, है ना। ये चेक नंबर आपको देना होगा आपका, एंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट, सो वी हैव टू राइट ऑल द थिंग। अगर ये आपका चेक हम सेल्फ यूज़ करते हैं, सो वी हैव टू राइट सेल्फ, है ना। इफ पंकज कुमार इज टेकिंग विड्रॉइंग मनी फ्रॉम हिज अकाउंट, सो ही हैज़ टू राइट, है ना, हियर सेल्फ। जहाँ पे के आगे आपकी लाइन है, सो दैट पर्सन हैज़ टू राइट सेल्फ हियर। सो यहाँ पे आपकी डेट मेंशन रहेगी। सो दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू, ठीक है, यूज़ दिस चेक। सो दैट इट इज़ वेरी गुड, सो दैट इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द बर्डन। तो कहीं ना कहीं हमें अगर कहीं दूर जाना है, सो दैट वी विल हैव अ चांस कि दैट समबडी विल स्टील अवर मनी, तो वी कैन यूज़ दिस। एंड इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट, अगर करोड्स में आपको कुछ पे करना है किसी को भी, सो दैट यू कैन यूज़ दिस चेक। सो दिस इज़, ठीक है, इज़ वेरी यूजफुल in nowadays. Now just look in this, that firstly you have to understand the demand draft, what it is. So you have to understand what is demand draft. So demand draft is a prepaid, so it means that we have to pay first. इसके लिए हमें क्या करना होता है, we have to pay first to the bank. So it is a negotiable instrument, so that it gives permission to the bank that bank can give this demand draft or whoever name is coming, ठीक है। सो उसके लिए हम जो भी आपका पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं आपका, सो दैट पर्सन कैन टेक दैट मनी, सो दैट ही कैन टेक द फुल पेमेंट। बिकॉज जिस पर्सन के नाम पे ड्राफ्ट बनता है आपका, सो दैट पर्सन कैन टेक द फुल पेमेंट वेन एवर ही इज़ प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर, ठीक है, डी, और शॉर्ट में हम कह देते हैं आपको डी आपका। सो जो बेनिफिशियरी होता है मीन्स दैट हुज नेम इज़ मेंशन्ड इन दिस डिमांड ड्राफ्ट, जिसके लिए हम इसको डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं आपका, सो दैट पर्सन कैन ईजिली टेक आउट द मनी, और ही कैन आस्क द सेम बैंक जहाँ से वो उसका डिमांड ड्राफ्ट बना है आपका, सो वहाँ से भी कर सकता है आपका, और दैट ही कैन डिपॉजिट इट in his account also. So this is the thing which is, which can be possible. Now you can just check here. So this is the demand draft. So महिंदर सिंह मौर्य, सो महिंदर सिंह मौर्य जो है आपका, सो इनके नाम पे आपका ये डिमांड ड्राफ्ट बना है आपका, एंड द डेट व्हेन इट इज़ इशूड, सो दिस इज द थिंग, एंड दैट हाउ मच अमाउंट इज बीन, ठीक है, इट इज़ गिवन, सो दैट इज़ 1,25 lakh rupees, so that you can check here. So it means that this amount is already paid by the person. तो ये अमाउंट महेंद्र सिंह के लिए पे कर दिया गया आपका। इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्रीपेड, ठीक है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड, एंड दिस इज द डिमांड ड्राफ्ट। सो इट कैन बी, ठीक है, इसकी जो डेट है वो उसको एक्सटेंड करा जा सकता है आपका, लेकिन चेक की डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। चेक इज़ वैलिड फॉर 3 months ओनली। सो वट एवर द डेट इज़ गिवन आफ्टर दैट इट विल बी, ठीक है, बाउंस्ड, उसके बाद वो बाउंस होता है आपका। सो देयर आर मैनी डिफरेंसेस विच वी विल टॉक, ठीक है, between that check and the demand drafts in other video. So thank you so much. If you have liked this video, so please like, share and subscribe this channel.